There are 4 criteria in total for proving the congruency of triangles. देखो, these are what? ASA, SAS, RHS and SSS. These are the 4 criteria for proving the congruency of triangles. We know ASA and SAS, these two congruence rules have already been discussed. Now we are going to discuss what is RHS and SSS congruency rule, right? SSS congruence rule, side congruence rule. 3 sides of one triangle will be equal to 3 sides of other triangle. Then these two triangle will be said to be congruent to each other. ABC एक triangle, PQR another triangle. In ABC triangle and PQR triangle, AB equal to PQ, AC equal to PR and BC equal to QR. In these two triangles, if AB equal to PQ and AC equal to PR and BC equal to QR, then ABC triangle will be congruent to PQR triangle. This is the side congruency rule, right? Then right angle hypotenuse side, RHS congruency rule. In two right angle triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle. Then two triangles are said to be congruent to each other. देखो, ABC and PQR are two right angle triangle. Right angle at B and right angle at Q. तो ABC triangle and PQR triangle में if कैसे congruent होगा, क्या क्या कंडीशन चाहिए? B equal to Q, B equal to Q, हमारा राइट एंगल है तो B equal to Q. देन हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के बाद क्या है? H, H मींस हाइपोटेन्यूस. राइट एंगल का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है. दिस साइड इज द हाइपोटेन्यूस, दिस साइड इज द हाइपोटेन्यूस. एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड AC इक्वल टू PR. देखो PR इज द हाइपोटेन्यूस, AC इज द हाइपोटेन्यूस. एंड साइड क्या बचा? आइदर AB और BC, तो AB इक्वल टू PQ. ये कंडीशन. सेकेंड क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? सेम B इक्वल टू Q, AC इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR. साइड मीन्स एनी साइड, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बाकी दो साइड बचा है, तो एनी साइड यू कैन टेक फ्रॉम दिस टू साइड्स. ओके, AB PQ के साथ हो सकता है और BC QR के साथ होता है. देन अगर ये दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल होता है, देन ABC ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PQR ट्रायंगल. राइट, ऐसा समझ में. देखो AB PQ के साथ इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देन AC PR के साथ इक्वल. 3 रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंट के लिए. हो गया 3 रिक्वायरमेंट. ये AC PR के साथ होगा, राइट एंगल के साथ होगा, BC अगर QR के साथ होगा ये भी चलेगा. तो दो कंडीशंस यहाँ पे है. ओके, RHS में दो कंडीशन अवेलेबल है. देखो, राइट एंगल के साथ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस के साथ हाइपोटेन्यूस, ये कंपलसरी है. AB के साथ PQ हो सकता है और BQ के साथ QR हो सकता है. राइट, so there are two possibilities in case of RHS, right? Now see some examples based on SSS and RHS congruency rule. पहला example, AB is a line segment, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from points A and B, so that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से समझो. AB is a line segment, right? PQ AB का अपोजिट में है दोनों. P is equidistant from AB, therefore AP is equal to BP. Also Q is equidistant from AB, therefore AQ is equal to BQ. हमें क्या प्रूव करना है? So that, जो हमें प्रूव करना है, so that line PQ line is the perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector of AB. PQ is the perpendicular bisector of AB means this angle and this angle का measurement, each angle का measurement 90 डिग्री and this side equal to this side. ये हो जाएगा तो then PQ will be the perpendicular bisector of AB. तो कैसे होगा देखो, गिवन हमारा क्या लिखना है? PA equal to PB since P is equidistant from AB and QA equal to QB. Q is the equidistance from AB. ये क्वेश्चन में गिवन है. टू प्रूफ क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम O दे दो. OA
equal to OB and POA equal to POB is equal to 90 डिग्री each। हमें ये प्रूव करना। अगर ये हमारा प्रूव हो जाएगा then PO is the perpendicular bisector of AB। अगर ये दोनों हमारा प्रूव हो जाएगा then PO perpendicular bisector PQ is the perpendicular bisector of AB होगा। ओके, तो प्रूफ देखो। प्रूफ देखो, APQ triangle in APQ triangle and BPQ triangle AP equal to BP ये given, ये दिया है P is equal distance from A and B। AQ equal to BQ ये भी हमारा गिवन है, Q is equal distance from AB। PQ equal to PQ ये कॉमन है। देखो ये ट्रायंगल, ए ट्रायंगल में PQ कॉमन है। अच्छा, तो साइड साइड साइड, देयरफॉर APQ triangle congruent to BPQ triangle by SSS congruency rule। हो गया। Then this angle will be equal to this angle by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। Then APO angle equal to BPO angle by CPCT। ये हो गया। देखो, now in AOP triangle and BOP triangle, in AOP triangle and BOP triangle में देखो PO कॉमन है, PO इक्वल टू PO ये क्या है कॉमन, AP इक्वल टू BP गिवन, AP इक्वल टू BP ये हमारा गिवन, और क्या है दिस इक्वल टू दिस, APO इक्वल टू BPO, APO इक्वल टू BPO ये हमारा अभी प्रूव हुआ है। इक्वेशन 1 लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा प्रूव हुआ है। तो ये साइड साइड एंगल देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये हो गया AOP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BOP ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT AO इक्वल टू OB बाय CPCT AO इक्वल टू BO। तो हो गया ना बाइसेक्टर। PQ लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो बाइसेक्टर। बस ये हमारा बाकी है, ये 90 डिग्री कैसे होगा देखो, बाय CPCT AOB इक्वल टू BOP बाय CPCT AOB इक्वल टू BOP सॉरी AOP इक्वल टू BOP, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। बट ये दोनों एंगल का सम क्या है, वी नो AOP प्लस BOP इज इक्वल टू 180। ये दोनों का सम 180 है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, तो ईच का मेजरमेंट क्या होगा, देयरफॉर AOP इक्वल टू BOP इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। आया समझ में, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, बट ये दोनों एंगल दे आर इक्वल टू ईच अदर बाय CPCT हमारा प्रूव है, तो ईच का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 90। हमारा ये दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री मिला और AO इक्वल टू BO मिला, देयरफॉर PO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at a point A so that AP bisects the angle between them। क्या पूछा है क्वेश्चन में, L and M are two point, they are intersecting each other at point A। A पॉइंट का नाम A है। P is equidistant from L and M, therefore PQ is equal to PR। इक्विडिस्टेंस है तो इक्वल होगा। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट AP दिस लाइन इज द AP बाइसेक्ट्स दिस एंगल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमें प्रूव करना है। देखो ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते हैं। इन PQA ट्रायंगल एंड PRA ट्रायंगल में देखो AP कॉमन है, AP इज कॉमन, AP इक्वल टू AP कॉमन लिख सकते हो और AP इज कॉमन चलेगा। ओके,
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये गिवेन क्या है, इक्व डिस्टेंस, पी पॉइंट इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एल एंड एम, एंड ये 90 डिग्री 90 डिग्री, पी क्यू ए इक्वल टू पी आर ए, ईच का मेजरमेंट 90 डिग्री। देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देयरफॉर बाय आर एच एस रूल, ओके, ए पी क्यू ट्रायंगल congruent to ARP triangle, therefore by CPCT corresponding parts of congruent triangle, by CPCT this angle will be equal to this angle QAP equal to RAP, हमारे ये दो एंगल इक्वल हो गया, therefore AP bisects the angle between them मतलब L and M, the angle between L and M। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर टू साइड्स AB BC and median AD of ABC triangle are correspondingly equal to PQ QR and median PM of PQR triangle, then prove that ABC triangle congruent to PQR triangle। ABC एक triangle, PQR another triangle, AB equal to PQ, AD median equal to PM median, BC side equal to QR side। हमें क्या प्रूव करना है, ABC triangle congruent to PQR triangle। देखो हमारा गिवन क्या है, गिवन है in ABC triangle and PQR triangle, AD median equal to PM, BC equal to QR and AB equal to PQ। ट्रू प्रूफ क्या है, ABC triangle congruent to PQR triangle, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो BC इक्वल टू QR हमारा गिवन है, BC इक्वल टू QR हमारा गिवन है, तो हाफ ऑफ BC विल बी डेफिनेटली इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अच्छा, तो हाफ ऑफ BC क्या होगा, BD, हाफ ऑफ QR क्या होगा, QM, तो BD इक्वल टू QM, इसको इक्वेशन 1 रखो। देखो ऑलरेडी BD इक्वल टू CD, QM इक्वल टू MR, तो QR का हाफ QM, BC का हाफ BD ले लो। अच्छा, नाउ इन ABD ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड PQM ट्रायंगल, ये दोनों में क्या इक्वल है, देखो AB इक्वल टू PQ ये हमारा गिवन है, AD इक्वल टू PM ये भी हमारा गिवन है, BD इक्वल टू QM फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में प्रूव हो चुका है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू PQM ट्रायंगल। तो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। हो गया, आप देखो नाउ इन एबीसी ट्रायंगल एंड पीक्यूआर ट्रायंगल, AB equal to PQ, BC equal to QR, एंगल B equal to एंगल Q। अभी प्रूव हुआ है, प्रूव विल लिख दो, B equal to Q। देखो AB equal to PQ साइड, एंगल B equal to एंगल Q एंगल, BD साइड सॉरी BC साइड इक्वल टू QR साइड, साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ABC triangle congruent to PQR triangle, right? Next example, in ABC equilateral triangle, AD is altitude, then prove that AB equal to AC equal to twice BD। क्वेश्चन में क्या दिया है, ABC is an equilateral triangle, हमें क्या प्रूव करना है, AB equal to AC equal to twice BD। देखो हमारा गिवन क्या है, गिवन है ABC is an equilateral triangle, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। टू प्रूफ क्या है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू ट्वाइस BD, यह हमें प्रूफ करना है। कैसे होता है देखो, तो प्रूफ देखो, इन ABD ट्रायंगल एंड ADC ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल, AD
इक्वल टू AD कॉमन, ओके, AB इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल, तो ये दोनों साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। देन ऑल्टीट्यूड, ये क्या है, AD क्या है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मींस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बेस, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होगा, देयरफॉर ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री since AD is altitude। अच्छा, तो हमारा क्या है, साइड, साइड या एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये हमारा था ना, राइट एंगल सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस एंड साइड, देयरफॉर बाय RHS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, देयरफॉर बाय सिपिसिटी BD इक्वल टू CD, बट वी नो सिंस इट इज an equilateral triangle AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ओके, तो AB रखो, AC रखो, BC के जगह पर लिखो BD प्लस CD, बट वी नो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD हमारा प्रूव हो चुका है बाई सिपिसिटी, तो AB इक्वल टू AC, BD, CD की जगह पर भी BD लिख दो, BD प्लस BD बिकॉज CD BD के साथ इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ CD यू कैन राइट BD, देयरफॉर AB इक्वल टू AC इज इक्वल टू ट्वाइस BD, प्रूव्ड, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इन द गिवन फिगर BA परपेंडिकुलर टू AC, BA AC को परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, DE परपेंडिकुलर टू DF ये 90 डिग्री, BF इक्वल टू C, AB इक्वल टू DE, प्रूव दैट ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DF ट्रायंगल। ध्यान से देखो, हमारा गिवन क्या लिखना है, गिवन में लिखना है BF इक्वल टू EC, BA इक्वल टू DE एंड BA परपेंडिकुलर टू AC, DE परपेंडिकुलर टू DF। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DEF ट्रायंगल। प्रूफ देखो, BF इक्वल टू CE ये हमारा गिवन है, BF इक्वल टू C, देखो FC, BF के साथ ऐड कर दो, FC CE के साथ ऐड कर दो, तो BF प्लस FC, CE प्लस FC, तो BF FC, BF FC BC हो गया, FCC EF हो गया, राइट। देखो हमें ABC ट्रायंगल के साथ DF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो BC चाहिए हमें, तो ऐड कर दिया, यहाँ पे EF चाहिए, तो ये तो कॉमन है दोनों में ना, तो ऐड हो गया, ये दोनों पहले से ही इक्वल है, बस FC लेफ्ट राइट साइड में हमें ऐड करना है, BC इक्वल टू EF, इसको ऐसे इक्वेशन 1 रखो। नाउ इन ABC ट्रायंगल एंड DEF ट्रायंगल, BC इक्वल टू EF ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, ओके। AB इक्वल टू DE ये हमारा गिवन है, BAC इक्वल टू EDF 90 डिग्री सिंस परपेंडिकुलर, ओके। तो हो गया हमारा साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देखो राइट एंगल का सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, therefore by right angle RHS, right angle hypotenuse side rule, ABC triangle congruent to DEF triangle. Next example, in this figure AB and CD are perpendiculars, AB CD are perpendiculars, देखो AB BD के ऊपर perpendicular, CD also BD के ऊपर perpendicular, AB equal to CD, AB equal to CD and AF equal to C, AF equal to C, AF equal to C, prove that B equal to FD, हमें प्रूव करना है B equal to FD, तो गिवन क्या लिखना है, हमारा गिवन है AB perpendicular to BD and CD perpendicular to BD, AB equal to CD and AF equal to CE, टू प्रूफ क्या है, BE equal to FD, देन प्रूफ देखो
in ABF triangle and CED triangle, ABF triangle CED triangle में AF इक्वल टू CE हमारा गिवन है, ABF इक्वल टू CDE, ABF 90 degree, CDF 90 degree, each 90 degree since they are perpendiculars, and AB इक्वल टू CD, ये भी हमारा गिवन है। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, देयरफॉर बाय RHS रूल ABF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CDE ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, देयरफॉर बाय सिपिसिटी BF is a part of ABF triangle equal to DE is a part of CED triangle, ये हमारा इक्वल हो गया। अभी देखो BF को देखो, DE को देखो, EF दोनों में कॉमन है तो सबट्रैक्ट कर लो, BF माइनस EF, DE माइनस EF, क्या मिलता है देखो, BF से EF जाएगा, देखो BF से EF जाएगा B, D से EF जाएगा DF, तो लेफ्ट पार्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद DE मिला, राइट पार्ट में सब्ट्रैक्शन के बाद DF मिला। हमारा क्या प्रूव करना था, B इक्वल टू FD और DF, तो FD लिखो, B इक्वल टू FD, हमारा प्रूव हो गया।